A very good morning to everyone, and welcome to the Uthan session today. So, today we are in the second session of the new topic that we started last week, which is how to handle others' mistakes. Last session was taken by Sister Karina. I hope you all enjoyed it. Today's session will be taken by Sister Sangeeta. She's already joined us. Didi, welcome. Om Shanti, and over to you. Shanti, good morning to all of you. So, meeting after a long time. I think so. We were in ORC also last time. All of you must have enjoyed ORC. Is it? Though it was a short trip. Yeah. So, okay. So again, today is the mistake-free month. Not doing any mistakes, or even if anyone is doing, how to handle it. दूसरे की मिस्टेक में डील कैसे करना है समझेंगे। तो अभी मिस्टेक फ्री में क्या करना है, सभी एंजल्स को वीडियो बंद करने के मिस्टेक नहीं करनी। कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, वीडियो ऑन रहे, मीन्स मिस्टेक फ्री। Okay, so all angels, those who can understand the angel language, they will do it. Okay, very good. Thank you very much. So angels can understand angels language. You have proved that you are angels. इशारों से समझने में। तो so today we are going to do a mishandling others' mistake. So how to handle it? ज्यादातर होता क्या है प्रॉब्लम, जब भी कोई मिस्टेक करता है तो how many of us most of the time, one is burst, getting angry, other is maybe I'm keeping quiet, but इधर चलता रहता है, और तीसरा है न इधर चलता है न जोर से बोलते हैं, न्यूट्रल है, और फोर्थ है हायर लेवल कि पॉजिटिव सोचते हैं, एंड फिफ्थ है गिविंग लव टू दैट पर्सन, द वन हु हैज डन द मिस्टेक। ये करना, इसलिए वो बताते हैं, बहुत अच्छा कहावत है, मोर द मिस्टेक perfect maturity is when a person hurts you and you try to understand their situation and don't hurt them back. ये है maturity. अगर किसी ने एक भी गलती की और दूसरा उस गलती के समय उस कुछ भी किया, I understand the situation. So a person is doing a mistake by hurting you, we all very much easily give the title, बहुत hurt किया, बहुत wrong बोला, ये मैंने समझा, and मैंने feel करके गुस्सा किया, did I do the other wrong? उसने तो wrong किया, हमने wrong किया, बहुत feel हुआ मुझे, और hurt feel हुआ, तो was I also in the mistake category? क्योंकि जब मैं hurt हो जाऊंगी because of what you did, what will happen? That time I'm not able to concentrate, and more important, उस phase में अगर कोई आ जाए, I won't be able to speak properly to that person, और कभी कभी मुझे उसके सामने तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन कोई और होगा जहां मेरा कुछ चलता है, I'll burst, I'll go on scolding them. तो एक ने मिस्टेक की, मैंने ये सब मिस्टेक की, क्या कहेंगे, करी या नहीं करी, ये सब मिस्टेक हुई,
because that I was not able to handle that mistake. So it was a virus, it passed on like that. So now I go on focusing कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, किसी के भी कारण हुआ. हम कई बार एग्जाम्पल दिया, आपने मीठा खाया और दांत दर्द हुआ. How many of us blame sugar for that? Because my tooth is paining. Sugar is wrong. How many of us do? शुगर रॉन्ग है. एक्चुअली आपको क्यों दर्द फील हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम. योर टूथ आर नॉट लाइक, नॉट ओके. शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देयरफॉर किसी ने कुछ भी किया, उसने किया, लेकिन उसके बाद जो जो मैं नेगेटिव करती हूं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? I and only I. So now, what actually, now that mistake is an indication for me. अगर मीठा नहीं खाती तो पता ही नहीं चलता मेरे ये दांत वीक है. मुझे पता चल गया कि वीक है, दर्द होता है, मुझे ठीक कराना चाहिए. So if I am getting hurt, being negative because of what you did, it's a very beautiful indication somewhere I need a very strong treatment. तो एक, therefore one is, and you understand. और दूसरा एक बहुत अच्छा है, love me when I least deserve it, because that's the time when I really, really need it. Bigger the mistake. Sorry, not bigger the love. Bigger the mistake, more the love. This is the formula of stopping, of correcting others. क्यों? जो मिस्टेक कर रहा है वो अपने आप में कहीं कुछ नेगेटिव फील कर रहा है, इसलिए वो कर रहा है. वन रियल इंसिडेंट. सो 7th स्टैंडर्ड की बच्ची होगी, तो एक बार वो आई स्कूल से, तो शी वॉज इन सर्टन रिलेशनशिप है. स्कूल से आई तो इधर कुछ मार्क्स थे ऐसे लगे हुए. पेरेंट्स ने जैसे देखा, मदर ने, बहुत गुस्सा आ गया. उसको काफी कुछ सुनाया, बोला, किया, और उसको तुमने मेरी ऐसी कर दी, तुमने मेरी नाक नीची कर दी, समाज में मेरा बहुत कुछ कह दिया. और फिर उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया, जाना नहीं है कुछ दिन. अच्छा, स्कूल वालों को पता चला, स्कूल भी थोड़ा उन्होंने एक्शन उठाया कि इफ दिस काइंड विल प्रिवेल देन हमारी रेपुटेशन खराब होगी. सो वी वोंट अलाउ some days that girl, very reputed school of Delhi, उसने ऐसा कदम उठाया. और अब वो एक बच्ची, she just went into a cocoon, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना. एंड फिर बाद में स्कूल ने कहा कि स्कूल में काउंसलिंग होता है कि प्लीज सेंड हर टू द काउंसलर. तो and they came to us also in Brahma Kumari Center कि प्लीज यॉल काउंसिल करो. तो काउंसलर, हमने फिर काउंसलर के पास पहले भेजा. तो काउंसलर ने एक सेशन डॉटर का लिया, उसके बाद बोला कि इसको कोई जरूरत नहीं, सेंड द पेरेंट्स. और पेरेंट्स से बातचीत की, और कहा कि बातचीत से पता चला पेरेंट्स को ज्यादा जरूरत है. तो क्या हुआ, दैट चाइल्ड टोल्ड कि शी इज द ओनली चाइल्ड
and there is always been clashes, conflict between the parents. और वो इतना ज्यादा होता था, अब वो सारा जो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है तो मदर कहाँ निकालती थी? बच्ची पे। उसको गुस्सा करना, उसको चिल्लाना ऑलवेज। तो मतलब उसने यही देखा पेरेंट्स में, एंड देयरफॉर प्यार नाम की चीज ही कहीं नहीं देखी। तो कहीं ने किसी ने थोड़ा सा लव दिखाया, वो उसको राहत मिली, शी वॉज ना, इसलिए उस तरफ झुक गई। तो एक्चुअली द वन द चाइल्ड इज बीन ऑलवेज डिप्राइव्ड ऑफ लव, एंड बिकॉज ऑफ विच जहां उसको वो प्यार मिला उसने ऐसा किया। तो वन अ पर्सन, even if he is doing a mistake or even if it's a blunder mistake, the very first thing what we that person needs, अब एक्चुअली क्या उसकी हीलिंग है? She is doing a mistake and that has a big strong background for the mistake. The healing is more anger, more hatred, more sidelining. But what? हीलिंग करना है, जल रहा है मेरा इधर, हम क्या लगाते? ग्लिसरीन लगाते जो ठंडक करे। जब भी जलता है बर्फ लगाया जाता है, सो दैट वो एकदम ठंडा कर दे। सो वन डूइंग अ मिस्टेक जस्ट बिकॉज I don't know where I contribute to the situation, to what the other person is doing, मुझे लगता है कि इसने किया ना ये गलत है। उस समय अगर, therefore this line very nicely as it has been said, he loved me, I had done a big mistake, but when I least deserve it, because that's the time when I really need it. तो उस समय अगर कोई बहुत प्यार से समझ ले, क्या होता? कारण कुछ और था और उस कारण को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल, आई वॉज जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट पर्सन। उसकी मिस्टेक दिख रही थी, मेरी नहीं थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कोई गलत कर रहा है, इफ वी रियली अंडरस्टैंड समवेयर कुछ न कुछ उसको एक लो सेल्फ एस्टीम है, लाइक द चाइल्ड, सब कर रहे हैं उसने भी ले लिया। अब उसने क्यों लिया? बिकॉज पीयर प्रेशर है, और अगर नहीं लिए ही विल बी साइडलाइन्ड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है उसको कि अगर मैं नहीं करूंगी तो दोस्त क्या कहेंगे। जो ये स्टेटमेंट बोलता है, सोचता है, अगर मैंने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, व्हाट डज इट प्रूव? very low self-esteem. My esteem, respect is dependent on what you feel about me, because I am not able to feel good about me. So I am very much concerned what you are feeling. And if I estimate कि अगर मैंने ऐसे नहीं किया आप मेरे लिए अच्छा नहीं फील करोगे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने ये गलती की। तो दैट पर्सन का एडिक्शन, वो लेना रॉन्ग नहीं था। व्हाट वाज द रूट कॉज? उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो था। एंड लो सेल्फ एस्टीम कैसे होता है? बच्चों का भी क्यों लो सेल्फ एस्टीम होता है? दैट पर्सन इज, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू थिंक गुड अबाउट हिमसेल्फ। कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स बहुत बार कंपेयर करते, देख उसको,
कितना अच्छा पढ़ता है, देख ऐसे, वो बड़े को देख वो कितना बोल्ड है. Whatever statement is been uttered and told to other person of comparison is nothing but hurting, making them low. और ये low self esteem which has been born, which has been grown over a period of time, that makes the person do something like that which may not be approved by the family, but because I will get the approval of the friends around me, I like it. मुझे वो चाहिए क्योंकि यहाँ का तो मुझे मिला ही नहीं, जो हमेशा कंपेयर किया गया. तो कोई भी कुछ गलती करता भी है अगर, तो इसलिए करता है क्योंकि हमारा बैक पीछे से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था. तो ये कंट्रीब्यूशन, तो इफ आई कैन, इफ नाउ आई माइट नॉट नो, हम तो ऐसे ही बोल देते, अरे देख उसको, वो कितना अच्छा है. हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में. कंपैरिजन वेरी डीपली हमारी मिस्टेक है. इफ नॉट और कुछ नहीं, हम अपने ही लाइफ से बच्चों को कंपेयर करते हैं. हमने अपने पेरेंट्स को कभी जवाब नहीं दिया, हमने तो कभी इन लॉज को ऐसे किया ही नहीं. व्हाट आर वी डूइंग? कंपैरिजन. एंड व्हाई दिस कंपैरिजन? बिकॉज इफ द मोमेंट वी अंडरस्टैंड, वो सोल है, उसकी अपनी जर्नी है और इसकी अपनी जर्नी है. दो अलग अलग बैकग्राउंड से आई है, मेरी अपनी जर्नी थी पास्ट. तो द वे आई विल हैंडल थिंग्स इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. द वे ही विल डू इट, वो आत्मा कहीं, वो गांव की, विलेज की सोल थी, तुम अमेरिका के सोल थे, वहां था पास्ट लाइफ. वो बॉम्बे का सोल था, सिटी का. नाउ दिस थ्री आर टुगेदर एंड गो ऑन कंपेयरिंग विथ ईच अदर. हम तो ऐसे ये है, हम लोगों ने तो ऐसे की. सो एवरीवन has has a big long journey. So the moment I understand कि he is a soul, हमारी comparison stop हो जाएगी. And this comparison, no comparison वाला atmosphere in the house will make the child very confident. तो accept, love them, मतलब accept what they are, means वो जो भी उसके संस्कार है उसको हम एक्सेप्ट करते कि यस, नेचुरल है ना, दैट सोल मस्ट बी फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, इसलिए इसके संस्कार है. नाउ एज अ पेरेंट मेरे को क्या करना है? अगर उसकी कुछ मिस्टेक है भी विच इज नॉट देयर इन आवर फैमिली, तो मुझे उसकी मिस्टेक को कैसे मैं फुल करूंगी? बाय, कोई डांस कर रहा होता है, दो जन डांस कर रहे हैं एकदम सिमिलर, एक जन स्टेप भूल जाता है, तो दूसरा जो सेंसिबल है वो क्या करेगा उस समय? वो और ही अच्छे से करता है. मतलब वन रिस्पॉन्स होगा कि उसको देख लिया, ओ माइंड से स्टॉप, ये तो पूरा रॉन्ग कर रही है, उसका फोकस किया, होगा क्या? वो अपना भी भूल जाएगी. और दूसरा है, अब उसको देखना ही नहीं है वो गलती कर रहा है. तो अब मुझे एक अपने, मुझे तो पूरा याद है, आई एम गोइंग ऑन डूइंग इट, एंड व्हाट विल हैपन? द अदर पर्सन विल कैच, रिमाइंड, your correct steps will make others remind others the right steps. तो एक जन लो सेल्फ एस्टीम में, एक जन बहुत क्रोध करता है, दूसरा उसको कैसे याद दिलाएगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, इतना जोर से नहीं बोलना चाहिए. कभी कभी हम क्या कहते हैं, मैं कितनी शांति से बोल रही हूं, आपको समझ में नहीं आता. ठीक है, मैं आपको बोल रही हूं
अशांति से बोल रही हूँ, मैं कितनी शांति से बोल रही हूँ, नहीं, when I go on explaining somebody, क्या मैसेज जाएगा? मुझे दिख रहा है आप इतने तंग आ चुके हो, बोलते मैं कितनी शांति, मैं 4 बार बोल रही हूँ, मैं कितनी शांति से बोल रही हूँ. Your words should match your behavior, your intention. When these three will match, and then you tell, and that जो वो प्रैक्टिकल देखेगा, उसको उसको समझ में आ जाएगा करना क्या चाहिए, rather than pointing out the mistake. तो इसलिए एक मिस्टेक करता है, दूसरा एकदम एक्यूरेट करता रहे, तो उसका मिस्टेक कम हो जाता है. मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक बढ़ता कैसे? हम कहते एकदम एक ने किया, दूसरे ने गुस्सा किया, तीसरे ने और उसको सपोर्ट किया उस गुस्से वाले को, फोर्थ ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए. अब ये 3 नेगेटिव एनर्जी उसको मिल रही है. वो तो नेगेटिव है, एक जन जिसने मिस्टेक किया, उसने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई. ये 4 जन की नेगेटिव मिलती है, क्या हो जाएगा? उसका गुस्सा बढ़ेगा. एंड दैट इज कॉल्ड रोड रेज. एक ने की, 4 ने सपोर्ट की. एंड देन दे से कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसने किया. एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एटमॉस्फेयर अराउंड. जो उसको डिसीजन उसने लिया, ऐसा किया. तो इसलिए एक करता है उस समय वेरी मच नेचुरल और डिमांडिंग हो जाती कि आई हैव टू जस्ट बी क्वाइट. दादी जानकी, द चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, everyone has some or the other, though it be the chief also, कोई ना कोई तो ऐसे रहता ही है अपोजिट अपोनेंट. तो एक दो बहन थी, तो आई सी होता किसी और के साथ, लेकिन जो बड़े होते हैं ना उसके ऊपर सब गुस्सा निकाल देते हैं. उसका किसी के साथ नहीं बन रहा था, आया जोर जोर से दादी को बोला तुम ऐसे करती हो, तुम बस पार्शियल हो, तुम ऐसे करती हो. 10 मिनट्स तक कंटिन्यूसली बोलते गए. दादी एकदम साइलेंट. और फिर बाद में दादी ने पूरा हो गया, चुप, कुछ भी नहीं बोला. फिर एक एप्पल दिया, बोला खाओ. भेजा, बोला सोचेंगे. फिर वो जो सिस्टर उसके साथ थी, उनको उसने कहा दादी आपने कुछ भी नहीं कहा, इतना उसने कहा. बोला दादी ने कहा मैं चेक कर रही थी कि मेरा अकाउंट कितना अच्छे से सेटल हो रहा है. उसके साथ कुछ अकाउंट था, सेटल हो गए. हुआ क्या? मतलब दादी ने कहा पहले 10 रुपए देना था, अभी 4 रुपए बचा है, 6 रुपए दे दिया मैंने. कार्मिक अकाउंट सेटल्ड. So when there is this kind of deep spiritual understanding, then only in that explosive situation, we can be very much not only neutral, but positive. तो एक बार प्रकाश मणि दादी, दादा दादी, अगेन इसी टाइप का था सिचुएशन. किसी ने कुछ कहा तो कह रही थी, तो एकदम दादी साइलेंट और मेडिटेटिव स्टेज में. फिर जब वो गई तो दादी को बोला कि दादी आप क्या सोच रहे थे? बोला मैं सोच रही थी, मैं बाबा को कह रही थी कि बाबा इस सोल को मेरे से क्या चाहिए, वो आप दो. देयर मस्ट बी सम वैकेंसी, तो आप जानते हो, आप दो. व्हाट इज दिस? सो वन इज डूइंग मिस्टेक, but sensible समझदार leader is one who won't continue that mistake with that deep spiritual understanding, which is the fact. क्योंकि उससे मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन है ना, इसलिए वो बहुत गुस्सा कर रहा है, उसका टारगेट कुछ और होगा. अब मैं क्या उसको कर सकती हूँ?
तो the way I will defend myself, if I justify, I defend, मतलब I'll 100% be negative. But when I be like that, तो इसलिए कि if at all anyone is doing mistake, तो others have to be more understanding. इसलिए this हम तो कहते तो है कि we love you बेटा, but do we accept it? ये love you नहीं चलता. In fact, we should say we accept you बेटा. अंदर से acceptance कि that soul has some vacancies और somewhere मेरी कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण उसके ये संस्कार बने. तो this acceptance, understanding is called acceptance. तो जितना हमारे में वो acceptance होगा, हम we are able, that is called love. So अब actually mental x-ray, जो व्यक्ति कुछ मिस्टेक कर रहा होता है, वो जैसे वो कोई भी मिस्टेक करता है, वो पहले से हर्टेड है. अब जैसे जो सपोज ये गलत कोई भी ऐसी आदत जिसकी लग जाती, क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर से कोई ना कोई एक हर्ट है. जैसे उसमें लो सेल्फ एस्टीम था, इसलिए उसने पीयर प्रेशर के कारण ऐसे किया. नहीं तो अब इन दैट सिचुएशन कभी कभी हम लोग में से भी, हम बड़े हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू वी डू समथिंग जिसमें हम कहते हैं कि लोग अच्छे, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ये ड्रेस नहीं पहना तो लोग क्या सोचेंगे. एनी टाइम डू वी थिंक लाइक दैट? देखो इस एज में भी, तो वो तो दूसरी एज है, उसमें तो वो पूरा पीयर प्रेशर के साथ ही है. तो therefore the doer actually is in a very hurted situation. और दूसरा, पहले ही वो हर्ट में है, ऑलरेडी इन हर्ट. अब ऐसे हर्ट के समय और फिर वो गलती कर रहा है, मिस्टेक करने के पहले उसमें लो सेल्फ एस्टीम था, तो इसलिए वो हर्ट है. और उसके बाद उसने कर लिया, पता है घर में नॉट अलाउड है, यहां नहीं चलेगा, फिर भी कर लिया, दूसरा मिस्टेक. अब तीसरा होता है जब, क्योंकि इनसाइड वैक्यूम है, इनसिक्योरिटी है. और तीसरा होता है कि पीपल गो ऑन स्प्रेडिंग दैट मिस्टेक. अब और उसके कारण वो द स्प्रेडिंग, तो मतलब वो सोल कितनी वीक है इनसाइड. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज लैकिंग. बट हमने क्या किया, तुम ऐसे करते हो, तुम ये करते हो, तुमको समझ में नहीं आता है. इसलिए रिसर्च स्टडीज की थी कि कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते एग्जामिनेशन के बाद, किन लोगों को सुसाइड की टेंडेंसी होती है. तो पता चला कि जो भी सुसाइड करता है, इट इज नॉट बिकॉज दे हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, बट they were very scared how they will face the parents who have done so much to them throughout the year for their examination. उनको वो फेस नहीं कर सक रहे, इसलिए सुसाइड कर. Who is giving them the pressure? तो गलत परफॉर्मेंस के कारण नहीं हो रहा है, समवेयर हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती. तो इसलिए of course motivate them, encourage them to do best in their fields, whatever they are doing, but at the same time they should have the flavor of acceptance by you, by the parents, कि yes कुछ भी हो जाए, we are there for you, you are okay, आपने अपना बेस्ट किया. that assurance,
that feeling they want from us. नहीं तो तुम गलत हो, तुमने ऐसे किया, ये एक्विजिशंस उसके पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा रॉन्ग क्रिएट करते। तो इसलिए क्या करना है, तो वन इज उसको एप्रिसिएशन और ज्यादा दे, और इस कारण एक तो हर्ट है, सो एडिक्शन है, और एडिक्शन और हो जाए और हर्ट होता है। और फिर जितनी बार द पीपल नियर अराउंड हिम गो ऑन थिंकिंग कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो चोर है, चोर है, क्या होता है उसको। कितनी बार अगर मेरे लिए कोई सोचे ये तो बिल्कुल बेकार है, बेकार है, बेकार है, कोई मेरे लिए सोचे, what could be the feelings I am going through? If I am low, मैं बिलीव करूंगी, और if not, I'll go on having angry thoughts. तो मैं तो वैसे ही ठीक नहीं हो रही ना। आपका बेकार का कहने का मतलब क्या था, कि मैं ठीक हो जाऊं? मैं नहीं ठीक हो सकती। तो कभी कभी वो सिचुएशन को क्योंकि हम नहीं अच्छे से फेस कर सकते, द अदर वन टेक्स दैट स्टेप। तो वन ब्रदर, उसने वो एक हमारे एक ब्रदर थे सीनियर पोजीशन में, उसके पास जॉब के लिए आए। तो गांव से आए थे, बोला क्यों, बोला ऐसा था कि मैंने मुझे खाना कुछ दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने, मेरे भाभी ने जिस तरह से दिया वो खाना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने थाली को उनके मुंह पे फेंक दिया। और जैसे ही फेंका, बहुत बड़ा, मुझे पता है कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, और भाग गया। और भाग के मतलब घर से ही भाग गया, और आई कम टू यू फॉर जॉब। नाउ सी बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि पता है कि इसके बाद मेरे साथ क्या रिजल्ट होने वाला है, जो मैंने मुंह पे फेंका है। और वो जो डर था उसके कारण मैंने छोड़ ही दिए। सो जस्ट बिकॉज द अदर्स आर नॉट एबल टू हैंडल the mistake of one person, sometimes it becomes a very powerful reason for the person to leave the place. तो इसलिए क्या करना है, एक गलती करता है, दूसरा उसको क्या करना है, उस समय आई जस्ट हैव टू एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड। ये दो इमोशंस फ्रॉम माई साइड will actually stop the mistake of the other person. एक गलत करके, एक जन रॉन्ग गाड़ी चला रहा है, दूसरा रॉन्ग करके उसको राइट नहीं कर सकता। इसलिए होता क्या है, बहुत बार जब आप, मैंने तो मिस्टेक की, आपने गुस्सा किया, तो मुझे अपनी मिस्टेक की रियलाइज के बदले में मुझे आपका ही गलत दिखता जाता। आप कौन से ठीक हो, मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू टेल यू डिपेंडिंग अपॉन द केस प्रोटोकॉल, बट आई विल फील आप कौन से ठीक हो। It hardly matters even if I have done the mistake, because I go on, the others have done that mistake. तो therefore एक गलत दूसरे गलत को कभी ठीक नहीं कर सकता। तो क्या करना है, तो हम हो सकते हैं मिस्टेक फ्री इफ आई वांट अदर्स टू बी वेरी। इसलिए बिगर द मिस्टेक, मोर द लव, मोर द एक्सेप्टेंस, मोर द अंडरस्टैंडिंग। तो ये हम मुशारत करेंगे। Seeing anyone's mistake, I won't do the second mistake by thinking about it, by telling about it, by spreading, and many other ways. वहां का वहां स्टॉप कर। हो सकता है कलयुग कलयुग क्यों बना, क्योंकि एक करता है, ये इतने सारे सोचते हैं, दो बोल देते हैं, और फिर पूरे दिन तक
वही चलता रहता। तो एक ने एक बार की, दूसरे ने 4 बार की, बराबर ज्यादा हो गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। फिर हम आते हैं घर में, बहुत स्ट्रेस है, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था। क्यों स्ट्रेस था? दिस हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस होमवर्क? वैसे तो ये बहुत अच्छा फील्ड है ना, मिस्टेक का। वी आर ऑलवेज इन द फील्ड ऑफ मिस्टेक्स। कोई ठीक से गाड़ी नहीं चलाता है, कोई ठीक से पेज नहीं रखा है, कोई ये नहीं करता है, सम और द अदर, इम्परफेक्ट वर्ल्ड में। सो दिस इज द हु इज पावरफुल, getting affected by others' mistake or just being powerful, giving my power energy to them? कौन शक्तिशाली है? A, B, giving my energy to them. So we can do this mistake. This is where meditation helps. उस समय मुझे केवल साइलेंस चाहिए एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन विद बाबा। चले 2 मिनट्स हम डीप कनेक्शन करेंगे, अंदर से फील करेंगे कि कुछ भी कोई दिखता है, कोई होता है, लेकिन मुझे कैसे एक्ट करना। रिएक्ट नहीं, एक्ट करना है। अपने आप को सब बातों से फ्री करें। एकदम साइलेंटली देखिए अपने आप को। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, वेरी प्योर एनर्जी, ऊपर परमात्मा से मेरे में बहुत प्योर वाइब्रेशंस आ रहे, शांति के, शक्ति के। कंप्लीट पॉजिटिव। complete pure vibrations. I'm filling myself with these vibrations. And now जैसे मेरे ऊपर एकदम बरस रहा है, अपने ऊपर इतना प्योर वाइब्रेशन से भरकर अब मैं सोल, आई एम सीइंग माई सेल्फ इन द एक्शन फील्ड। अलग अलग पर्सनैलिटी के बीच में मैं, एंड आई एम अवेयर, किसी में कुछ, किसी में कुछ, सब में कुछ न कुछ इम्परफेक्शन। I take the charge of myself. किसी ने कुछ भी कह दिया, कर दिया,
I am a powerful soul. I will understand it. I am a powerful soul. I am a powerful soul. Om Shanti. So this is a small homework. Everybody will do it. करेंगे. साइलेंस की प्रैक्टिस होगी ना तो मिस्टेक के समय साइलेंट रह सकते. And this is the leader. Okay. Om Shanti. Om Shanti Didi, thank you so much for the session. Let us meet the next week, everyone. Thank you for attending. Have a nice day. Om Shanti.